Okay, so welcome back. So let's start. Fine. So this is the digital signal from the screen. From my screen, you are seeing a digital signal. Okay. So the digital signals, these are represented in the form of digits. So here the digits are used. That is a binary digits. Okay. Binary means two. The dictionary meaning of the binary is two. So the two digits is taken as 0 and 1. 0, 1. Okay. Okay. So the 0 means no signal and 1 means signal is there. Okay, 0 means no signal and 1 means signal. If we represent 0 as 0 volt and 1 as 5 volt, let us say. Okay, so the 0 means 0 volt, 1 means 5 volt. 0 volt, here again 5 volt, 5 volt, 0 volt, 0 volt, 5 volt, 5 volt, and so on. Fine, means 0 means no signal, 1 means there is a fixed 5 volt signal. Okay, so this is the digital signal. Now what is the digital electronics? Again, this is in the form of definition. The digital electronics deal with the electronics which manipulate of number or with the manipulation of varying quantity by means of a numbers. What is the dictionary meaning of manipulation? Please respond. What is manipulation? Manipulation means Mehul. It is manipulation means to control, not it is to change. Actually, manipulation means नहीं Amrita. It is not to convey. Manipulation means किसी को manipulate. That is to change. Okay. Manipulation means change करना, modify करना उसको. Fine. So the digital electronics deals with the manipulation of the numbers. Numbers को manipulate करना, numbers को change करना, modify करना, ठीक है? Playing with the numbers. Okay, so digital electronics, that is the digits. Because it is convenient to do so, ठीक है? डिजिट्स को हैंडल करना इजी होता है बिकॉज हमारी वॉइस सिग्नल है उसको हम कभी भी ओके सो जो वॉइस सिग्नल होता है उसको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते बट द डिजिटल सिग्नल्स इसको नंबर्स में रिप्रेजेंट करना इजी होता है एंड नंबर अगर दो ही हों दैट इज वन इज जीरो जीरो एंड वन तो उनको और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा नंबर्स के साथ ठीक है सो the numbers are binary digits are taken most of the cases that is 0 and 1 so again 0 means off and 1 means on फाइन आपने जीरो और वन से क्या इंटरप्रेट करना है जीरो मीन्स ऑफ एंड वन मीन्स ऑन fine so the digital stands with the digits digital electronics basically has two condition which is possible that is zero means low logic and one means high logic okay so digital electronic system use the digital signal that are composed of mathematical yeah very right Anuruddh Saxena I actually coming to that the electrical switches what about quantum computing is slightly different from this okay so you have to check on the your course curricular में पढ़ो कि आप what is the quantum computing quantum is actually
related to the photons of light. Okay, so this is the something which is not here in the curricular right now. Okay, so I am talking about the on and off. Same as the electrical switches. The electrical switches, if we control the fan and the lights with the use of the switches, then what happens when the switch is on? Ma'am, can you share PDF in group? Gurleen, it is already shared in your content. फाइन, ये सारी पीडीएफ की जो हाँ, ये जो पीपीटी है इस ये ऑलरेडी आपके कोर्स कंटेंट में है. सो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गेट्स हैं जो आपने थोड़े पढ़े होंगे पहले, अदरवाइज मैं पढ़ाऊंगी. सो द गेट्स इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल स्विचेस. जैसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस वर्क करती हैं, जैसे हमने स्विच ऑन कर दी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, स्विच ऑफ कर दी तो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है. ठीक है, इन द सेम वे द डिजिटल गेट्स वर्क. ओके, so the digital gates work, that is on and off. When the 0 is transmitted, the gate is off. When 1 is transmitted, the gate is on. Fine. So 1 as true, 1 को आप true भी कह सकते हो एंड 0 को as false भी कह सकते हैं. ठीक है, एंड 1 अगर सिर्फ 1 ट्रांसमिट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द बिट, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द बिट्स इज कॉल्ड द बाइट. अब कोई बताएगा दैट हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट? एक बाइट में कितनी नंबर ऑफ बिट्स होती हैं? यस, इट इज 8 बिट्स. एक बाइट में 8 नंबर ऑफ बिट्स होती हैं. यस यस यस. Okay, so the digital circuits, electronic circuit are usually made of large number of logic gates. ठीक है, so digital circuit कुछ नहीं है, ये सिर्फ large number of logic gates से बने हुए हैं. अब logic gates क्या हैं? logic gates कुछ नहीं है, this is just a switches. लॉजिक गेट सिर्फ स्विचेस हैं, और जब स्विचेस को कंबाइन कर देते हैं हम, देन इट मेक्स अ डिजिटल सर्किट. फाइन. डिजिटल डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी दैट जनरेट करता है, डिजिटल सिग्नल को जनरेट करता है, इसको स्टोर करता है एंड इसको प्रोसेस करता है. एवरीथिंग will happens only in the terms of 1 and 0. Fine. The next is analog versus digital. Here you can see the CD drive. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी सिंगर ने सॉन्ग सुनाया, गाना गाया, ठीक है, सिंगर ने, उसको हमने सेव करना है सीडी में. देन दैट सॉन्ग is an analog quantity. That song will get converted from analog to digital. Okay, and it gets stored in the CD drive in the form of 101 10111. कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. फाइन. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी ने, जैसे किसी ने भी सॉन्ग है या किसी की कोई वॉइस है, कोई लेक्चर है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू स्टोर. डज वन बिट कंसिस्ट ऑफ 1? यस, 1 bit means either 1 or 0. ठीक है, 1 bit का मतलब क्या है? either 1 or 0. फाइन. ओके, सो CD में that is the storage is 101100. okay, so this type of the storage in the CD drive, digital data store हो गया in the form of 100. एनालॉग, किसी ने सॉन्ग सुनाया या लेक्चर बोला तो ऑडियो ही है, ऑडियो इज एन टाइप ऑफ एनालॉग. Then for storing it in the CD, this analog get converted into the digital, okay, in the form of 1011. Okay, after that when we have to listen that song or lecture, then there is a digital to analog converter. डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या करेगा? डिजिट्स को उठाएगा एंड कन्वर्ट कर देगा एनालॉग सिग्नल में. ओके, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा. देन आफ्टर दैट देयर इज एन एम्पलीफायर. एम्पलीफायर क्या करेगा? बस कुछ नहीं करता. एम्पलीफायर इज जस्ट इंक्रीज कर देता है स्ट्रेंथ को, इंटेंसिटी को, ताकि हमें अच्छी वॉल्यूम सुने. एवरी काइंड ऑफ डेटा इज सेम इन द फॉर्म ऑफ, नहीं, डिफरेंट डेटा का डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सॉन्ग है, दैट विल बी द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 0101. ओके, एंड कोई लेक्चर है दैट हैज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन. जैसे हम कहते हैं कि दिस आर द, तो इंटरनेट की स्पीड आ रही है, दैट इज मेगाबिट्स पर सेकेंड, मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है, किलोबिट्स पर सेकेंड. तो दैट इज द, एक सेकेंड में इतनी किलोबिट्स मतलब के थाउजेंड्स नंबर ऑफ बिट्स आ रही हैं एक सेकेंड्स में. मेगाबिट्स में मतलब क्या हो रहा है? 10⁻⁶ नंबर ऑफ बिट्स आ रही हैं. ओके, सो ऑल दिस बिट्स, मैम
बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है यार, मैं तो बिल्कुल खाली रूम में बैठी हूँ। ओके, सो दीज ऑल नंबर ऑफ बिट्स। नाउ हमने अब हम ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो सीडी में डेटा स्टोर हो रहा है या लैपटॉप में डेटा स्टोर हो रहा है, ऑल दीज आर इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स में स्टोर हो रहा है, ठीक है। बट अब हम ह्यूमन है, रिसीव तो ह्यूमन ही करना है ना अल्टीमेटली। अगर यहाँ पे सीडी टू पीसी में ट्रांसफर करना होता, ओके, सीडी टू पीसी में ट्रांसफर करना होता, देन यू नीड नॉट टू यूज अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। बट स्पीकर जो यूज कर रही हैं, दैट इज अ ह्यूमन यूज कर रहा है, देन वी नीड अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। फर्स्ट वी स्टोर द डेटा, एनालॉग डेटा इन फॉर्म ऑफ डिजिटल, एंड देन again we convert the data into, yes, आपकी क्लासेस आज से शुरू हुई हैं, ये आज की सेकेंड क्लास ही है। फाइन, प्लीज concentrate on what I am saying. I know you have a lots of doubts and these doubts धीरे धीरे क्लियर अप होंगे जैसे जैसे आपकी क्लासेस होंगी, बट आपकी आज से ही क्लास शुरू हुई है। Okay, so now concentrate. So there are the two types of the signal. This one, the signal which is shown in the red, that is the digital signal, and the signal shows in the green is the analog signal. Fine. So the digital signals, you can see it as a fixed values, only two values, that is 0 and 5. 0 volt and 5 volt. Okay, so 0 volt, here it is 0 volt, 5 volt, 0 volt, 5 volt, 0 volt, 5 volt. But the analog signal is the continuous signal that has the infinite number of values. कैसे कि यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू और है, यहाँ पे वैल्यू और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, ऐसे करके पीक वैल्यू कुछ और है, फिर ऐसे ही वैल्यूज डिक्रीज होती जाएंगी, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जीरो होगी, फिर नेगेटिव में डिक्रीज होंगी, ठीक है। सो इट हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट हियर इट इज 0 वोल्ट, हियर you can say it is a 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt, 6 volt, then again 5 volt, 4 volt, 3, 2, 1, 0. Okay, so you can say that there is an infinite, exactly Satyam. So it is nothing but an AC signal. AC means alternating current signal. Analog signal is nothing but an AC signal. Can or cannot be what? There can or cannot be symmetry in analog key system. Anu, I am not getting your question. What you're trying to say? There can or cannot be symmetry. Okay. एनालॉग सिग्नल सिमेट्रिकल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यहाँ पे जो सिग्नल शो किया हुआ है दैट इज अ सिमेट्रिकल सिग्नल, बट इफ द वी सी, हाँ यस अभिनव, इट इज अ ग्राफ ऑफ साइन एक्स सिग्नल, very true. So it is an analog signal. Sine signal is basically an analog signal. Okay, it is a continuous signal. Continuous signal, sine signal, analog signal, AC signal. Okay, you can say whatever you want. Fine. So it is an analog signal. But if we talk about the symmetry, the analog signal जो actual में होते हैं, for example, the voice which I am producing or the voice the human body is produced is not symmetrical at all. What does symmetry means? Symmetry means the signal, this axis is the x-axis, y-axis. Symmetry means कि the signal which is here, the same signal will appears on the other side. Okay, that is it will have the बिल्कुल symmetrical pattern. Okay, the same pattern. But the audio signal, actual signal, is the real time signal is the audio signal that a human body produced. So this is not a symmetrical signal. Fine. But it is just an example, but the real signal is an audio signal and that signal is not a symmetry signal. Even we cannot represent that's fluctuating. Yes. Okay, when I am loud, so my signal is strength is increased, so that this amplitude is increased. When I speak slow, then this amplitude will get decreased. Okay, so
It means it will fluctuate with the time. Fine. So now you are clear what is the digital signal. Digital signals have only the fixed value 0 volt, 5 volt, 0 volt, 5 volt. Okay, so this is the digital signal. The next one is the analog signal that has an infinite number of values. Infinite number of values. Okay. So how the conversion of analog to digital occur? So मैंने पहले भी बताया that we have an analog signal, then we have a block that is called the analog to digital converter. इसको ADC भी बोलते हैं. बीच में we have the digital system. The digital system might be your telephone, your mobile, your camera, your PC, anything. Okay, so the digital system will process the signal or it stores the signal. Okay, and at the last, when the human body is going to receive the signal must convert from digital to analog because we cannot understand the digits. Okay, हम digits नहीं understand कर पाएंगे. अगर कोई बोले कि 1010 की combination है, ये एक song है, then we cannot understand the signal. Then the machine will convert. The machine name is digital to analog converter will convert that digits in the form of analog signal so that human can understand. Fine. Now there are the lots many benefits of the digital signal over the analog signal. What are these benefits? First is the reproducibility. First is the reproduce. To reproduce the digital signal is much easy. How? Because the digital signals को हमने bits में represent कर रखा है. हमें पता है कि ये combinations था bits का जो transfer हुआ था. Fine, ये combinations था जो transfer हुआ था. ठीक है. So अगर in case नॉइज के साथ हमारा सिग्नल इफेक्ट हो रहा है, नॉइज आ रही है, देन वी कैन इजीली रिप्रोड्यूस दिस, क्योंकि बिट्स को रिप्रोड्यूस करना इजी है. बट एनालॉग सिग्नल जब हमको पता ही नहीं है कि वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, देन हाउ वी कैन रिप्रोड्यूस दैट. ओके, सो द रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज एन एडवांटेज ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन. Is time consuming. Yes, Abhinav, it is definitely it is a time consuming task, but because there are the lots many benefits of the digital communication as compared to the analog signal, but the human is the analog. Okay, so that's why we need to analog to digital converter and digital to analog converter. Okay, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता. अगर मशीन टू मशीन इंटरफेस करना है, मशीन टू मशीन इंटरफेस कर रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सीडी है, सीडी का डेटा हमने पीसी में स्टोर करना है, देन वी नीड नॉट द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. बट इफ दैट डेटा इज प्रोसेस्ड बाय अ ह्यूमन, देन अगर ये टाइम कंज्यूमिंग है भी तो भी हमको इसको लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा. ओके, सो अनिरुद्ध क्या पूछ रहा है? इज एनालॉग इन सिग्नल एंड एनालॉग आउट सिग्नल इज सेम? यस. अगर आपने कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया है तो वो सॉन्ग एज अ इनपुट जा रहा है, वही सॉन्ग एज अ आउटपुट आ रहा है. ओके okay? तो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आपने कौन सा असेस कर रहे हो. सेम इनपुट ही आप आउटपुट ले रहे हो ना. वो बीच में प्रोसेसिंग होके जस्ट, अगर तो वो जस्ट स्टोर हो रही है, जस्ट स्टोर सेव हो रही है वहां पे, तो फिर तो सेम होगा एज इनपुट एंड आउटपुट. बट अगर वो प्रोसेस हो रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने सिर्फ ऑडियो दी है, बीच में म्यूजिक है, देन input and output are somewhat different. Is introduced yet or not? Abhinav, there is no limitation on the technology. ठीक है, so there is a lots of research going on. हर किसी में अपनी अपनी advantages होती हैं, disadvantages होती हैं. ठीक है, so अभी तक टेक्नोलॉजी की कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितनी फास्ट हो चुकी है. जैसे फर्स्ट हमारे पास था माइक्रोवेव, अब ऑप्टिकल आ गया. ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स आर वेरी मच फास्ट एज कंपेयर टू अवर माइक्रोवेव्स. ठीक है, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स. अब उसके आगे हमारे पास टेरा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज हैं, तो मे बी इससे ज्यादा स्पीड आ जाए. एंड अल्टीमेटली क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इज अल्टीमेटली फास्ट टेक्नोलॉजी. जब हम लाइट की स्पीड को मैच कर पाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि ये हमारी टेक्नोलॉजी लास्ट है. ओके, इससे ज्यादा हम कुछ और इनोवेशन नहीं कर सकते. गॉट द आंसर अभिनव? हैव यू गॉट द आंसर अभिनव? ओके,
Mehul, ma'am, but when we record a song, system is able to immediately store the recording. So how is analog to digital slow? Yes, but ये टेक्नोलॉजी ही है, बट देयर इज ऑब्वियसली जब हमने एक कंपोनेंट बीच में प्लेस कर दिया तो वो कुछ तो टाइम लेगा ना। हमें लग रहा है कि ये बहुत फास्ट है क्योंकि मशीन्स हमसे बहुत ज्यादा फास्ट हैं, पर बीच में एक कंपोनेंट है, इट्स इसका अपना टाइम होगा, वेदर दिस टाइम इज इन द मिली सेकेंड्स और इन द नैनो सेकेंड्स ड्यूरेशन, बट इट ये सिस्टम को समवट स्लो कर देगा। हो सकता है उससे भी ज्यादा हो मैम। Yes, it is slow on a micro level. Speed of light is equals to time machine. Yes. Okay, मैम got it. Yes, जो टाइम मशीन है जो आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है दैट इज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के बेस पे है ना, इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, है ना। चलो, डाइवर्ट नहीं होना। The second point is the not affected by the noise. Yes, the क्यों सत्यम, yeah, I can understand your curiosity, but प्लीज मुझे अपना सिलेबस थोड़ा कवर करवाने दो, ठीक है। अभी तक तो नहीं बनी टाइम मशीन। नहीं, इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है सत्यम, इट्स ओके, बट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर सिलेबस, ओके, क्योंकि वो टाइम मशीन से नहीं चल सकता। ओके, सो द सेकेंड पॉइंट इज नॉट इफेक्टेड बाय द नॉइज। ओके, क्योंकि अगर ये नॉइज के साथ इफेक्ट हो भी गया तो क्या होगा, जीरो बिट वन में चेंज हो जाएगी, वन बिट जीरो में चेंज हो जाएगी, यही हो सकता है ना ज्यादा से ज्यादा। सो इट इज लेस इफेक्टेड बाय द नॉइज। द थर्ड वन इज इजी टू डिजाइन। ओके, क्योंकि वी हैव टू डील विद ओनली जीरो एंड वन, डिजिटल सिग्नल जीरो एंड वन ही है, वी हैव टू डील विद ओनली जीरो एंड वन, सो इट इज इजी टू डिजाइन। ओके, द फोर्थ वन इज डेटा प्रोटेक्शन। नाउ व्हाट इज डेटा प्रोटेक्शन? आपने व्हाट्सएप पे मैसेज देखा है कभी कि दिस इज एंड टू एंड इंक्रिप्शन, द डेटा इज protected with end-to-end encryption. So what is the meaning of encryption there? What is the meaning of encryption there? Encryption का क्या मतलब है? Yes, protected, privacy, secure. Yes. So इंक्रिप्शन मीन्स कि ये डिजिटल में ही पॉसिबल है, कि उसमें क्या होता है कि देयर आर द बिट्स के अंदर ऐसे बिट्स ऐड कर देते हैं जो कि सिर्फ जो टारगेटेड यूजर है कि मेरा डेटा सिर्फ इसी तक पहुंचे और यही इसको डिकोड कर पाए। ओके, सो इसमें डेटा सिक्योरिटी ज्यादा है। कैसे? वो डेटा में ऐसी बिट्स ऐड कर देंगे कि अगर दूसरा कोई उसको एक्सेस करेगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस होगी, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या डेटा है। फाइन, सिर्फ जो अथोराइज्ड पर्सन होगा उसी को ही पता होगा कि इसको कैसे डिकोड करना है। फाइन, द नेक्स्ट वन इज अ प्रोग्रामेबल। ओके, so all the programmable software are based upon the digital data. Okay, 0101 पे ही होते हैं, all the softwares are based upon the digital. Okay, the next one is a high speed communication. that is the communication की speed जो होती है high होती है। for example, FM रेडियो पता है ना, frequency modulation radio. So FM radio is very much slow as compared to today's word communication. Like जो communication मैं कर रही हूँ अभी, मेरी ऑडियो भी जा रही है, मेरी वीडियो भी जा रही है, और मैं जो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ वो भी हो रही है, ठीक है। बट दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ डिजिटल सिग्नल, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन द FM रेडियो। फाइन, FM रेडियो इज एन एनालॉग टेक्निक, उसकी स्पीड बहुत कम है एज कम्पेयर टू द डिजिटल टेक्निक। Yes, इंटरनेट में भी 3G 4G 5G इज एन एग्जाम्पल ऑफ द हाई स्पीड डिजिटल कम्युनिकेशन। अभी तो और भी आएंगे, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन तो हम वेल अवेयर हो गए, अब उसके बाद सिक्स सेवन जनरेशन पे भी रिसर्च चल रही है। ओके, सो फोर्थ जनरेशन तो हम यूज कर ही रहे हैं। फाइन, सो द डिजिटल इज अ हाई स्पीड। नाउ एडवांटेजेस ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन सेम, कंप्यूटर के इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर के साथ क्या हो सकता है कि सेम हार्डवेयर डिफरेंट टाइप की डिफरेंट फॉर्म में वर्क कर सकता है, ठीक है। जब हम सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, हार्डवेयर सेम ही है, तो एक बार वो डिफरेंट फॉर्म में वर्क करेगा, दूसरी बार डिफरेंट फॉर्म में वर्क करेगा। ओके, सो ओनली बाय यूजिंग द डिफरेंट सॉफ्टवेयर। द सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन स्टोरेज इज ईजी है। इंफॉर्मेशन स्टोरेज कैसे ईजी है? बिकॉज इट इज द लिमिटेड नंबर ऑफ बिट्स हैं, एनालॉग सिग्नल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर करना डिफरेंट है एज कंपेयर टू द फाइनाइट नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है।
द थर्ड वन इज द नॉइज इम्यूनिटी, इसकी नॉइज इम्यूनिटी ज्यादा है, ठीक है। इट इज मोर इम्यून टू नॉइज, क्योंकि क्या होगा अगर ये नॉइज के साथ इफेक्ट हो भी गया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जीरो कन्वर्ट होगी, नॉइज के साथ अगर इफेक्ट होगी तो जीरो कन्वर्ट होगी वन में, वन कन्वर्ट हो जाएगा जीरो में, पर फिर भी इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। द नेक्स्ट वन इज डिजिटल सिस्टम्स आर इजियर टू डिजाइन एंड मोर प्रिसाइज, ये तो सबने पहले ही बता दिया कि डिजिटल सिस्टम्स इजी हैं डिजाइन करने के लिए, मोर प्रिसाइज है, मोर एक्यूरेट है। कैसे, क्योंकि जो भी चीज हम नंबर में डिफाइन कर सकते हैं ना, द थिंग दैट वी कैन रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है। फाइन, तो दिस वी कैन, मैम हाउ नॉइज कैन इफेक्ट इट, नॉइज कैसे होता है व्हेन वी ट्रांसमिट द सिग्नल, जैसे हमने मोबाइल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सिग्नल्स हवा में ट्रांसफर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जब कभी वेदर्स बुरा होता है, क्लाउडी होता है और रेन ही सीजन होता है, देन अवर नॉइज विल गेट इफेक्टेड, अवर सिग्नल गेट इफेक्टेड बाय द नॉइज। बट डेटा चेंज हो जाएगा ना मैम, यस डेटा चेंज हो जाएगा, बट वी कैन इजिली डिटेक्ट, हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी बिट इफेक्ट हुई है और हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। Yes, Sachin, noise is an unwanted sound. Okay. Yes, there is some noise cancellation is also there. Finally, it is all about energy. Yes, Dinesh, it is all about energy. Energy cannot be created nor can be destroyed, but it is just convert from one form to the another form. सब कुछ एनर्जी है, हम भी एनर्जी ही हैं. Okay, the last one is एरर मैनेजमेंट, ये वही बात आ गई कि उसमें क्योंकि बिट्स हैं, सो टू डिटेक्ट द एरर बिट्स एंड टू करेक्ट इट, ओके, इज इजी है एज कम्पेयर टू द एनालॉग सिग्नल। अगर एनालॉग सिग्नल में नॉइज आ गई तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे आई है, क्योंकि उसने तो साइन वेव के साथ ऐसे ऐसे होना है ना, साइन वेव जैसे ये सिग्नल है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पे क्या चेंज आ पाया है, ठीक है। फाइन, एंड द सेकंड लास्ट पॉइंट इज मोर डिजिटल सर्किटरी कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन आईसी चिप्स। अब हम देख ही रहे हैं कि इसका मदरबोर्ड हो गया या मेमोरी कार्ड हो गया या सिम हो गया, ऑल दीज आर द आईसी चिप्स हैं सारी। आईसी चिप्स मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑल दीज आईसी चिप्स वर्क ऑन द डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। नाउ अब कुछ भी परफेक्ट तो होता नहीं है, if there is a lots of advantages of any technology then there will be the disadvantages, okay, disadvantages भी होंगे। so the first disadvantage क्या है कि we always need the converters, ठीक है, हमको हमेशा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर चाहिए एंड द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि मशीन आपस में तो बात नहीं करेंगे, अल्टीमेटली ह्यूमन इज गोइंग टू प्रोसेस द डेटा, ठीक है, human is going to receive the data. So for that, for the interfacing, we must need analog to digital converter and digital to analog converter. First disadvantage तो ये हो गई, okay. So the second disadvantage is that digital circuits uses more energy than analog circuits. डिजिटल सर्किट्स जो एनर्जी यूज करते हैं दैट इज मोर है एज कम्पेयर टू द एनालॉग सर्किट्स, प्रोड्यूसेस द मोर हीट एंड हीट सिंक रिक्वायर्ड, ओके। सो अब वही बात हो गई, दिनेश की बात लेते हैं, फाइनली इट इज ऑल अबाउट द एनर्जी। एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो अगर हमने डिजिटल सिग्नल को एक इलेक्ट्रिसिटी दी देन इट गेट कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके लिए हमें हीट सिंक चाहिए। So once, what is a heat sink? पता है किसी को what is heat sink? जल्दी जल्दी बताया करो भाई, what is the heat sink? Yes or no? No. सिंक मतलब क्या, किसी को सोर्स, सोर्स का उल्टा सिंक, सिंक मतलब कि किसी को दबाना और किसी को खत्म करना, ठीक है। और हाँ कूलेंट है, यस मेहुल, हीट सिंक इज वर्क एज अ कूलेंट, जो हमारे पीसी लैपटॉप में जो फैन होता है ना, दैट फैन इज ऑल्सो वर्क एज अ हीट सिंक, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको कूल डाउन कर रहा है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो स्वेटिंग होती है दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द हीट सिंक, फाइन। तो कई जगह पे
पानी की वेंटिलेटर्स लगे होते हैं, पानी की पाइप्स लगी होती हैं, दैट ऑल्सो वर्क एज अ हीट सिंक। हीट सिंक ने बेसिकली क्या करना है कि अगर कंपोनेंट का हीट बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उसको डैमेज होने से बचाने के लिए हीट सिंक यूज करते हैं। ठीक है, तो हम जो यूज करते हैं दैट इज द फैन का, लैपटॉप का जो फैन है दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ हीट सिंक। ठीक है, वो हीट सिंक है। ओके, सो द डिजिटल सर्किटरी में हीट सिंक की ज्यादा जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू द एनालॉग। फाइन। The next one is the digital circuit are sometimes more expensive, especially in the small quantities. ठीक है, डिजिटल सर्किट्स मोर एक्सपेंसिव होते हैं। अगर हम एफएम रेडियो यूज करते हैं तो एफएम रेडियो जो रेडियो होता है वो सस्ता होता है एज कम्पेयर टू अवर, क्या बोलेंगे उसके कंपैरिजन में क्या होगा, एज कम्पेयर टू अवर मोबाइल्स और एनी अदर इक्विपमेंट्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कॉम्पैक्ट होते हैं, डिजिटल सर्किट्स क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, उसमें छोटी सी स्पेस में काफी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लगे पड़े होते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर द कॉस्टली, ये कॉस्टली होते हैं। फाइन, दीज आर द सम 3 डिसएडवांटेज ऑफ द डिजिटल। सो नेक्स्ट, देर आर लॉट्स एप्लीकेशंस। ये मुझे सिर्फ दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। देर आर द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दैट यू आर encountered in your day to day life, whether it is in your mobile, in your television, in your camera, everywhere there is a digital। ठीक है, अब तो हर जगह डिजिटल हो गया, एनालॉग तो ऑब्सोलेट हो गया अब तो। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल्स तो आप खुद भी लिख सकते हो कि कहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको मेरे से ज्यादा पता होगा, आई थिंक, कि कहाँ कहाँ डिजिटल यूज हो रहा है। फाइन। सो अगेन एप्लीकेशंस ऑफ द डिजिटल मे बी okay, so the applications, there are the lots of applications. The digital system sends a data in form of packets। ठीक है, तो पैकेट तो पता ही है ना, दैट इज द डिजिटल डेटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स बनता है। 1010 के कॉम्बिनेशंस को ही बोलते हैं कोड, और कॉम्बिनेशन ऑफ कोड्स इज कॉल्ड द पैकेट। फाइन। द सेकेंड वन इज द डेटा इंक्रिप्शन इज ऑल्सो पॉसिबल। डेटा इंक्रिप्शन की हमने बात पहले ही कर दी। डेटा इंक्रिप्शन इज पॉसिबल इन द डिजिटल कम्युनिकेशन। इंक्रिप्शन के साथ क्या होता है, डेटा सिक्योर होता है, प्राइवेसी इंक्रीज होती है, एंड डेटा एथोराइज्ड पर्सन के पास ही जाता है। हाँ, कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको डिकोड नहीं कर पाता। ओके, एनालॉग टेलीफोन्स वगैरह जो पहले की टेलीफोन्स होते थे ना, उसमें क्या होता था कि कोई टैप कर लेते थे, बीच में ही डाटा टैप कर लेते थे। बट अभी क्या हो रहा है कि कोई बीच में टैप नहीं कर पाता, सिर्फ अथोराइज्ड पर्सन ही उसको एक्सेस कर पाएगा। The third point is the digital systems are the much advantage in the communication transmission। ठीक है, अब तो कम्युनिकेशन में सारा कम्युनिकेशन ही है बेसिकली। ये जब हम व्हाट्सएप चलाते हैं, मोबाइल है, टेलीविजन है, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, सो तो कम्युनिकेशन में डिजिटल ने रिप्लेस कर दिया एनालॉग को पूरी तरह से। ठीक है, एनालॉग के नाम पे सिर्फ एफएम रेडियो बचा है, बाकी सारी जगह डिजिटल आ गया। So this is the summarization। Okay, so in the today's fast-growing technology need the evolution of digital electronics, speed, space, and accuracy are the 3 key parameters। Speed, डिजिटल में हमको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मिलती है। स्पेस, स्पेस मीन्स क्या होती है, अ वेरी स्मॉल स्पेस में हमारे लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल है, अब हमारा मोबाइल हर तरह का काम करता है। ठीक है, इट वर्क एज अ टेलीविजन, इट वर्क एज अ रेडियो, इट वर्क एज अ कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, हम इसमें ऑडियो भी भेज रहे हैं, वीडियो भी भेज रहे हैं, टेक्स्ट भी भेज रहे हैं, एवरीथिंग। ठीक है, सो छोटी सी स्पेस में कितना सारा, सो इट इज अ वेरी स्पेस एफिशिएंट। एंड द थर्ड वन इज द एक्यूरेसी। ठीक है, बिकॉज डिजिटल को वी कैन रिप्रेजेंट द मैथमेटिक्स। जब मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो एक्यूरेसी तो 100% होगी। ठीक है, एनालॉग में क्या होता है, एक्यूरेसी नहीं होती। फाइन, वन सच ऑफ एग्जांपल इज एनालॉग इज द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, उसमें क्या होती है, दैट इज अ नॉट 100% एक्यूरेसी। हम कहते हैं नहीं कि देर इज अ नो परफेक्शन, ह्यूमन बॉडी परफेक्शन नहीं होती, there is no accuracy in the human body, but in the digital, in the machines, there is a 100% accuracy।
एनालॉग वॉचेस, यस एनालॉग वॉचेस में भी इतनी एक्यूरेसी नहीं होती एज कंपेयर टू द डिजिटल. फाइन. The third one is every signal is by default analog in nature. Okay, ये हमने डिस्कस कर लिया. That is nature produces the analog signal. Okay, but the machine is going to work on the digital signal. Therefore, we always need an analog to digital converter and digital to analog converter so that man can able to interface with the machines. Fine. The last is infinite application can be seen around which very well explain the need of digital electronics. हमारे आसपास ही there are infinite number of applications हैं digital की. Fine. So these all are the references. ठीक है. But you definitely get this PPT and the recorded lecture from your course content. ठीक है. Course content में आपको ये lectures and PPT मिल जाएंगे. Okay, otherwise if you want something extra then there is also the NPTEL lectures. आप सीधा गूगल पे सर्च करोगे that is the NPTEL lectures on digital electronics. तो आपको number of NPTEL lectures मिल जाएंगे digital electronics के from the IIT professors. ठीक है, तो आप वो भी सुन सकते हो, वो भी ज्वाइन कर सकते हो. फाइन. तो हमारे पास 3 मिनट बचे हैं इन द नेक्स्ट क्लास जो आपकी आई थिंक है 3:30 से है ना नेक्स्ट क्लास डिजिटल की. हम क्या मतलब क्या है हाँ, तो उसमें ये हमारा लैब का सेशन था पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी था क्योंकि फर्स्ट क्लास थी. तो जो थ्योरी वाली क्लास होगी उसमें पर उसमें चलो एनी डाउट फॉर दिस क्लास. इस क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट हो. शायद सत्यम क्या यस या है शायद. अच्छा, तो ऐसे वाले ना टेक्स्ट व्हाट्सएप पे रखा करो हम वाले. यहाँ पे yes और no because we are teaching the digital electronics either 0 or 1. It's okay. No need to say sorry. Okay. So Rahul said 0. 0 मतलब no मैम. 0 मतलब yes होता है. Yes, Sachin, it is 1. 1 means yes and the 0 means no. Okay, so you have the class on the 3:30. फाइन. तो ये इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी उसमें. और अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो जस्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमने पढ़े हैं. फाइन. एनी डाउट you can understand ma'am digital signal. Mehul said 0 ma'am. Okay, so 0 means false, 1 means true. ठीक है, अगर आप यूज करोगे 0101 तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज सारा कुछ 0101 पे ही चलेगा. 01 का ही प्ले है सारा. एक्टिविटी नहीं, अभी तक मैंने कोई असाइनमेंट एक्टिविटी असाइन नहीं की है. अगर आपको शो हो रही हो तो प्लीज इग्नोर इट. इज नो, रेडियो इज नॉट यूजिंग द डीसीए. ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. इट इज नॉट डीसीए, इट इज डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. ओके, सो बिकॉज द रेडियो इज टोटली एनालॉग, वो एनालॉग को ही प्रोसेस करता है, एनालॉग को ही ट्रांसफर करता है, एनालॉग से ही रिसीव करता है. सो इट डज नॉट नीड एनी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. उसको कोई जरूरत नहीं है. फाइन. जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं तब डिजिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था. ओके, सो अनिरुद्ध प्लीज ठीक कर लो. इट इज नॉट डीसीए, इट इज डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. ओके, गॉट द आंसर. अब सत्यम त्रिपाठी व्हाट इज दिस 010101? इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल. कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. 000 111 1010 ऐसे कुछ भी हो सकता है. इट इज एनी कॉम्बिनेशन. ओके, एनी अदर क्वेरी? Okay, so this session is over. Can we study logic gate? Yes, we will definitely study the logic gate, but before that, I will
teach you the first binary system. Okay, we will first study the number system. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ द नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम पहले, उसके बाद हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे. मैम ई बुक से ही पढ़ना है ना? नहीं, देयर इज सर्टेन, अगर आपको कोई सॉफ्ट कॉपी मतलब अगर आपको हार्ड कॉपीज पढ़नी है देन यू कैन गो फॉर दैट. ठीक है, बिल्कुल सिंपल मॉरिस मैनो की है. आपको वैसे बुक्स के नाम भी वहां से मिल जाएंगे आपके कोर्स कंटेंट से, बट देयर इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय मॉरिस मैनो, MORIS, मॉरिस मैनो. ओके, और अगर इंडियन राइटर की पढ़नी है बाय आनंद कुमार, देयर इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बुक बाय आनंद कुमार. ओके, अदरवाइज ई बुक्स तो हैं, ई बुक्स एंड नोट्स का हैं. तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स दैट प्लीज लीव द सेशन, प्लीज लीव द सेशन. ओके, थैंक यू, थैंक यू. Satyam, you can check your books from the course content. Okay, or I will send you. Hmm. Okay.